Hello, my dear friends. This is Ajay Mishra, and we are going to start our new discussion on Indian polity. And today's discussion is emergency powers. So, emergency power के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे पहले. तो let's start our discussion on this topic. First, let's start with the basics. You tell me one thing. We have created a federal structure. You all know. India is a federal country. And this federal country is biased towards, in favor of center. Now you can say, generally in a federal country, center and states are at equal footings. In a federal country, a center and states are at equal footings. They are given equal powers as in United States, you can understand. But why in India this principle was broken? क्या इंडिया देना नहीं चाहता था इनको पावर स्टेट्स को? ऐसी कोई बात नहीं है. या बायस था, ऐसा भी कोई बात नहीं है. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि इंडिया न्यू वेरी क्लियरली दैट इंडियाज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी कैन बी पॉसिबल ओनली इफ सेंटर इज स्ट्रांग. Now we have adopted the federal system just for the convenience of the administration. But the problem is, every time whenever there will be a danger to unity and integrity, definitely our country becomes unitary, or it adopts unitary feature. And that's why this is the only federation in the world जो अपना shape बदल सकता है. It is called transformer. ट्रांसफार्मर क्यों बोला? हॉलीवुड की एक मूवी है ट्रांसफार्मर. हाँ, वो जब चाहते हैं गाड़ी बन जाते हैं, जब चाहते हैं ये करते. द सेम थिंग हैपन्स हियर इन इंडिया. व्हेनेवर इट वांट्स इट बिकम्स अ फेडरल कंट्री. व्हेनेवर इट वांट्स इट कैन बिकम यूनिटरी. इट इज द यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नो कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कैन चेंज इट्स शेप, कैन चेंज इट्स कैरेक्टर in a single second. मतलब आप यूं समझ लो कि इवन अ सिंगल इंसिडेंट इज देयर जिसमें ये अचानक पूरा ही पूरा जो फेडरेशन होता है वो अचानक यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है. सो दे आर लाइक ए ट्रांसफार्मर. एंड अम्बेडकर साहब हैज ऑल्सो कॉल्ड दैट इंडिया इज द ओनली कंट्री which can change its shape. If we talk about USA, can it change its form? No, it cannot change its form. But India is the country which can transform its form from federal to unitary and from unitary to federal as the circumstances arises. Now, what was the most important motive? That is unity and integrity of India. Now what can be the dangers to the unity and integrity of India? जो यूनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है एक्सटर्नल और दूसरा हो सकता है इंटरनल. एक्सटर्नल में हो सकता है वो और एग्रेशन. कोई भी कंट्री हमारे खिलाफ वॉर कर सकती है, एग्रेशन कर सकती, तो हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा हो सकता है. या फिर इंटरनल भी हो सकता है. दो तरीके से हो सकता है इंटरनल में. एक तो होगा जिसमें एक ग्रुप हो या जो सिटीजन्स हो, एक पूरा कम्युनिटी हो, वो
हमारे खिलाफ या सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दे, आर्म्ड रेबेलियन कर दे, या फिर कोई गवर्नमेंट एक काम कर दे, वो क्या करे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करे। If you know, in India, constitution is supreme, constitution is sovereign. Now if any government, state government is doing this, then definitely it is automatically a blow on India's sovereignty. And third thing is that anytime the situation may arise that हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाए कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे खतरा आ जाए, तो फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ये तीन चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा हो सकती है। और ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए इंडिया को बचने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए जो बनाई गई है वो बनाई गई है इमरजेंसी पावर। ये जो इमरजेंसी पावर है ये इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए बनाई गई है। वाइल 352 टॉक्स अबाउट वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड armed rebellion, the second talks about constitutional failure in a state. Another talks about financial emergency. It is mentioned in Article 356 and it is mentioned in Article 360. Overall emergency power has been explained in between Article 352 So emergency power gives India a supreme character of transformation from its federal structure to unitary. जैसे ही इमरजेंसी लगती है, हमारी जो सेंटर गवर्नमेंट होती है, that is called parliament, it becomes supreme. किसी भी लेजिस्लेशन पे बना सकता है। अब जैसे ही इमरजेंसी लगा, पार्लियामेंट बिकम सुप्रीम, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम सुप्रीम। नाउ देखते हैं कि कितने तरीके की इमरजेंसी लगती है। खैर मैं आपको बताऊं तो 3 तरीके की इमरजेंसी को जो मेंशन किया जाता है हमेशा वो होती है। नाउ फर्स्ट इमरजेंसी इज बिकॉज ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज national emergency. However, the constitution employs the expression proclamation of emergency. ये proclamation of emergency की बात करता है, ये national emergency नहीं कहता है। दूसरी emergency है an emergency due to failure of the constitutional machinery in a state, Article 356. This is popularly known as President's Rule. It is also known by 2 other names, state emergency as well as constitutional emergency. However, the constitution does not use the word emergency for this situation. तो इसे हम लोग पॉपुलर पार्लेंस में स्टेट इमरजेंसी कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल कह सकते हैं, बट एक्चुअली इसे सिर्फ एक चीज़ नाम से जाना जाता है, दैट इज़ आर्टिकल 356, दैट इज़ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। थर्ड आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थ्रेट आ जाए इंडिया की, या इंडिया के जो क्रेडिट है उसको नुकसान हो जाए, उसको थ्रेट हो, तो डेफिनेटली जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसे लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन इम्पोज्ड टिल नाउ इन इंडिया, बट बोथ द अबव
emergencies, just like external national emergency as well as president's rule have been imposed many a times. While national emergency has been imposed thrice in 1962, 1971 and 1975. This has been imposed more than 100 times. This has never been imposed any time in India. So this is the type of emergency. Let's go and start with the first. Ground of declaration of national emergency. What is called a national emergency? When there is a war and there is external aggression and there is armed rebellion, ये तीनों पे लगाया जा सकता है इमरजेंसी. वॉर मान लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है तो इसे हम कहेंगे, तब हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, जैसा कि 1971 में और 1962 में हमने लगाया था. तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसा कि चाइना में एक्सटर्नल एग्रेशन 1962 में एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था, उसके आधार पे लग सकता है. वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ 1970, उसके आधार पे लग गया. ये वर्ड पहले आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस. इसके आधार पे 1975 में लगाया जा चुका है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे. बट 44th अमेंडमेंट एक्ट में इस वर्ड को चेंज कर दिया गया. इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन वर्ड का इस्तेमाल किया. इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबेलियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया. तो व्हेन ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, it is known as external emergency. But when it is declared because of armed rebellion, then it is called internal emergency. Okay, so these are the grounds of national emergency. Now major points to remember. हमें national emergency के बारे में कुछ पॉइंट को हमें हमेशा याद रखना चाहिए. सबसे पहली बात कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया. पहले पूरे इंडिया के लिए लगाई जाती थी नेशनल इमरजेंसी, बट अब इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कि स्पेसिफाइड पार्ट में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है. और ये जो बात है ये 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया. इसके बाद प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैबिनेट, एंड दिस प्रोविजन वाज एडेड इन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. आपको मैं बताऊं कि जो पहले था, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इमरजेंसी लगा दो, लग जाता था. लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में रिटन देना होगा कैबिनेट को. इट इज द कैबिनेट वर्ड हैज बीन मेंशन्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज देयर. इसी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस वर्ड को यहाँ पे जोड़ दिया गया. 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू. इंदिरा गांधी जी ने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई वो, और जुडिशियल रिव्यू से ही इम्यून कर दिया नेशनल इमरजेंसी को. नेशनल इमरजेंसी लगा दिया, जुडिशियल रिव्यू उसका हो ही नहीं सकता. बट इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट में छोड़ दिया गया, फिर से इसे उसी बदल दिया गया, इसका रिव्यू हो सकता है. मिनर्वा मिल केस में भी 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल इमरजेंसी है इसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और इसका ग्राउंड मेलाफाइड है या इररिलेवेंट है, इस बात की जांच की जा सकती है. तो 42nd अमेंडमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था. वाई? बिकॉज इट केम व्हेन इमरजेंसी वाज इन ऑपरेशन, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी के लिए, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे. 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट. नाउ पार्लियामेंट अप्रूवल एंड ड्यूरेशन. इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 1 month. देखिए, जो इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी से 1 month के अंदर इसे अप्रूव किया जाना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में. इफ इट इज अप्रूव्ड इट कैन बी कंटिन्यूड फॉर 6 months. इसे 6 महीने में अगर अप्रूव करेंगे तो लागू रह सकता है. अगर 1 महीने के अंदर इसे दोनों हाउस पास कर देते हैं तो ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए रह सकता है, बशर्ते कि इसे हर 6 महीने पे दोनों हाउस का अप्रूवल मिलता रहे. इन बोथ द हाउसेस दिस मस्ट बी अप्रूव्ड एंड दिस was added by the 44th Amendment Act 1978. And every resolution
approving the proclamation of emergency must be passed by special majority. What is a special majority? 2/3 of present and voting plus absolute majority. तो ये जो होगा इमरजेंसी के लिए, नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी है, बाकी दोनों के लिए सिंपल मेजॉरिटी है। तो प्रीवियसली बिफोर 44th अमेंडमेंट इट कुड हैव बीन पास्ड बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले इसे सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जा सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसमें बदलाव कर दिया गया है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी रिवोक्ड बाय ए प्रेसिडेंट एनी टाइम। जो इसका रिवोक करना, इसको कैंसिल किया जा सकता है एनी टाइम, इसे प्रेसिडेंट कभी भी इसे हटा सकता है। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। It was also added by the 44th Amendment Act that if 1/10 of the total member of the Lok Sabha give written notice to the Speaker, a special session must be held within 14 days for the purpose of considering resolution disapproving the continuation of the proclamation. अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है तो भी इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। और अगर मान लीजिए सेशन में नहीं है और 1/10 मेंबर ने, मतलब सिर्फ 55 लोगों ने ये कह दिया कि सेशन बुलाया जाए, सेशन राष्ट्रपति को बुलाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को बुलाना पड़ेगा और 14 दिन के अंदर इस सेशन को बुला करके इसको डिसअप्रूव कराया जाएगा। अगर लोकसभा चाहती है तो सिर्फ 1/10 मेंबर चाहिए इसके लिए।